our today's topic is exercise number 2D from your textbook, in which we will see how to subtract the decimal numbers. Okay? In our previous exercise, we learned how to add the decimals. Here we will see how to subtract the decimals. Subtraction of decimals and addition of decimals are equal as per the normal subtractions and additions. जैसे नॉर्मली हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, वैसे ही हमें डेसिमल के एडिशन सब्ट्रैक्शंस करने होते हैं. उसमें बहुत कोई लंबा फर्क है नहीं. देयर इज नो लॉन्ग डिस्टेंस इन बिटवीन द नॉर्मल एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस एंड डेसिमल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. We just have to be careful about the decimal point given in the question. हमें सिर्फ डेसिमल पॉइंट जो दिया है उसको देखना है, उसे भूल नहीं जाना है. क्वेश्चन नंबर 1A 0.6 minus 0.2. Okay, 6 minus 2 will be 4. Decimal point is given, so we'll put it, and then 0 minus 0 will be 0. Okay, B number 4.2 minus 2.1. 4.2 minus 2.1. 2 minus 1 will be 1. We will put 1 decimal place, and then 4 minus 2 will be 2. Okay. C number 3.4 minus 0.8. 4 minus 8, as you already know, is not possible. So we will have to take borrow 1 from 3. Okay. 14 minus 8 will be 6, and 2 minus 0 will be 2. Don't forget to place or put a decimal point. Okay. Wherever the decimal point is given to you in the question, in the answer, you will have to put a decimal place on the same. Okay, on the same place. Now question number 2A. I have done 3 questions of question number 1 on the board, and remaining 2 numbers, that is number D and E, you will try to solve on your own. Next, question number 2A. 8.25 minus 3.18. See, 5 minus 8 is not possible. Take 1 borrow from 2. Okay? 2 में से 1 आपने आगे दे दिया है, तो 1 बचेगा आपके पास. 15 minus 8 will become 7. 1 minus 1 will be 0. And 8 minus 3 will be 5. 5.07. Okay? B number. 6.49 minus 0.65. 9 minus 5 will be 4. 4 minus 6 is not possible. Take 1 borrow from 6, and it will become 5. 14 minus 6 will be 8, and 5 minus 0 will be 5. This way you will do all the remaining questions of question number 2. Okay. Now I will do question number 3A. 22.157 minus 15.208. See, 7 minus 8 is not possible, so we take 1 borrow from 5. 1 minus 2 is not possible. Take 1 borrow from 2. Okay. 11 minus 2 will be 9. 1 minus 5 is not possible. Take 1 borrow from 2. 11 minus 5 6. 1 minus 1 0. This is question number 3A. जहाँ पे
माइनस नहीं हो सकता है तो उसके आगे के डिजिट में से हम एक बोरो लेके माइनस करेंगे, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको डेसिमल पॉइंट लिखना भूलना नहीं है, ठीक है। अगर भूल जाओगे तो मे भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4. Find the difference between 13.5 and 5.9. हॉरिजॉन्टली आप अरेंज करो, सॉरी हॉरिजॉन्टली आपको जो दिया है क्वेश्चन उसको आप पहले वर्टिकली अरेंज करोगे, ओके। 13.5 माइनस 5.9 डिफरेंस आपको फाइंड करना है, मीन्स आपको माइनस करना है, ठीक है। 5 माइनस 9, टेक बोरो 1 फ्रॉम 3, so it will become 2. 15 minus 9 will be 6. 2 minus 5 is not possible. Take borrow 1 from 1, so here it will become 0. Okay, 1 जो था उसमें से 1 आपने आगे दे दिया, so 1 minus 1 will be 0. 12 minus 5 will be 7. Here 7.6 is the answer. 15 and 8.55. 15 minus 8.55. आपको डेसिमल के पीछे 15 में कुछ नहीं दिया है तो आपको लाइक या तो इक्विवेलेंट डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है उतने आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इक्वल करने के लिए आप उतने जीरोस लिख दो, ठीक है। दोनों के डेसिमल प्लेसेस इक्वल होने चाहिए, तो हमने 2 जीरो लिख दिए कन्वीनियंस के लिए, सो दैट आवर subtraction becomes easy. 0 minus 5 not possible. यहाँ पे दोनों नंबर्स के पास 0 है तो बोरो हम कहाँ से लेंगे, 5 में से, ओके। 10 में से 1 चला जाएगा 9. 10 minus 5 will be 5. 9 minus 5 will be 4. 4 minus 8 is not possible. Take 1 borrow from 1. 14 minus 8 will be 6. नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल प्लेसेस इक्वल होने चाहिए। देखो आपको यहाँ पे 8.55 मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस दिए हैं, ओके। मतलब डेसिमल के पीछे 2 डिजिट्स आपको दिए हैं, लेकिन ऊपर का जो नंबर है वहां पे आपको डेसिमल के पीछे कुछ भी नहीं दिया है, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को इक्वल करने के लिए आपने 2 जीरोस अपने हिसाब से लिख दिए हैं। नेक्स्ट 35.123. Question number 4, 6. 35.123 minus 34.321. Here you can see number of decimal places दोनों में इक्वल है, सेम है, दोनों में डेसिमल के पीछे आपको 3 डिजिट्स दिए हुए हैं। Now we will do subtractions directly. 3 minus 1 will be 2. 2 minus 2 will be 0. 1 minus 3 is not possible. Take 1 borrow from 5. 11 minus 3 will be 8. 4 minus 4 will be 0 and 3 minus 3 will be 0. So your answer is 0.802. This is question number 4. एक जो लास्ट सम बाकी है क्वेश्चन नंबर 4 का वो आप खुद करने की ट्राई करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5. वर्क आउट इन द नोटबुक एंड फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक आपको दिए हैं, लेकिन उसके लिए आपको वर्कआउट मतलब की मेथड आपकी वेयर नोटबुक में करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको सिखा रही हूँ, वैसे आप करना। 2.35 प्लस डैश 2.35 plus dash is equals to 5.53. ओके, कोई दो नंबर है उसका टोटल कितना हो रहा है 5.53. कोई दो नंबर्स अगर आप प्लस कर रहे हो तो आपको टोटल में आंसर इतना मिल रहा है
प्लस डैश इज इक्वल टू 10। मैं 4 में क्या प्लस करूंगी मुझे 10 मिलेगा। ओके, सो व्हाट इज द मेथड? 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। 4 में अगर मैं 6 प्लस करूंगी तो मुझे 10 मिलेगा। ठीक है, सी ओरली भी अगर हम गिनते थे तो हमें 6 आंसर मिल जाता था। 4 के बाद क्या आता है? 5 6 7 8 9 10। कितनी गिनती की मैंने तो मुझे 4 में 10 मिला। 6 तक मैंने काउंट किया। ओके, मैंने 6 काउंट किए इसलिए मुझे 10 मिला है। तो जो टोटल जब आपको दिया हुआ है उसमें से आप एक गिवन नंबर माइनस कर देते हो तो आपको अदर नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो दिस वे व्हाट विल वी डू? 5.53 माइनस 2.35। 13 minus 5 will be 8. So 3.18 will be our answer. ओके, जब आपको टोटल दे रहे हैं, टोटल दिया है आपको कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे एक नंबर के साथ दूसरा नंबर प्लस करके दिखाया है आपको। तो दो नंबर हम जब प्लस करते हैं तब हमें ये आंसर मिल रहा है। अब उसमें से एक नंबर ये है तो दूसरा कौन सा है? तो दूसरा नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप टोटल में से वन गिवन नंबर जो है उसको माइनस करते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बी 110.26 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 200.6। मतलब 110.26 में मैं क्या प्लस करूंगी कि मुझे 200.6 मिल जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा नंबर जो टोटल है वो आंसर है आपका। ओके, तो आप क्या करोगे? उसमें से छोटा नंबर माइनस करोगे। 110.26 दोनों के डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को इक्वल बनाने के लिए मैंने एक जीरो लगा दिया है। $90.34. Okay. Now C number you can try to solve on your own. 100 आपको टोटल मिल रहा है, उसमें से एक नंबर 96.45 है, तो दूसरा कौन सा होना चाहिए? तो you will follow the same method as of question number 5A and B, and you will try to find out the solution for question number 5C. Okay. Right now I will do question number 5D on the board. $18.32. Okay, question number 5D 18.32। उसमें से मैं क्या माइनस करूंगी कि मुझे 8.65 मिल जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको कौन सा नंबर मिसेंगे वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो गिवन नंबर बड़ा वाला नंबर है वो आपको दिया है, उसमें से छोटा नंबर आप माइनस कर दो। ओके, सी 12 माइनस में क्या करूंगी तो मेरे पास 6 बचेगा। 12 में से मैं क्या कट करूंगी तो मुझे 6 मिलेगा। सो व्हाट विल आई डू? आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन बाय सबट्रैक्टिंग 12 minus 6. So 6. ओके, ये आपको ऑलरेडी पता है, हमने शायद अगले सेमेस्टर की जो बुक थी सेम 1 की उसमें ये शायद दिया हुआ था कि जब आपको माइनस करके दिया है कोई भी क्वेश्चन तो आप उसको माइनस ही करते हो। ठीक है, लेकिन जब प्लस करके टोटल दिया है आपको तब भी आप माइनस ही करते हो। ये मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है शायद। ठीक है, $9.67. This is your answer. Okay. Question number 5 D I have done. Now question number 5 E you will do on your own. I am doing question number 5 F.
नंबर्स है वो दोनों सेम है. डैश माइनस 132 will give you 200.25. बड़ा नंबर कौन सा है? 200.25. तो हम वो पहले लिख लेंगे एंड उसमें से 132 हम माइनस करेंगे. ठीक है. अब एक चीज याद रखना, जब आपको पहला नंबर द फर्स्ट नंबर ऑफ द सब्ट्रैक्शन जब दिया है तब आपको माइनस ही करना होता है. बट व्हेन यू आर गिवन द सेकंड नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन एट दैट टाइम यू विल हैव टू ऐड बोथ द नंबर्स. ओके. अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने दो जीरो लिखे हुए हैं. 2 5 will remain as it is. 2 3 3 332.25. ये हुआ आपका आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 5F मैंने जैसे किया है वैसे आप क्वेश्चन नंबर 5E ट्राई करोगे. ठीक है. माइंड वेल, अच्छे से याद रखना, जब आपको पहला नंबर देते हैं सब्ट्रैक्शन में और दूसरा फाइंड आउट करना है तब आप सब्ट्रैक्शन ही करते हो. ओके. बट व्हेन यू आर गिवन द सेकंड नंबर ऑफ द सब्ट्रैक्शन एंड द डिफरेंस you are asked to find out the first number, then you will have to do the addition. Question number 6 to 8 है वो more sums for practice है. It means वो subtraction में कहीं ना कहीं मैंने already पहले आपको करवा दिया है exercise में, but then I am doing 1 or 2 sums for you on the board and remaining sums you will have to try to do on your own. Okay. Question number 6A 0.739 minus 0.36. ओके. पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाना चाहिए, आपका अरेंजमेंट वही होना चाहिए. ठीक है. अगर डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल नहीं आएगा, इधर उधर हो जाएगा तो सब्ट्रैक्शन एडिशन इजीली हो नहीं पाएगा. ठीक है. यहाँ पे हम एक जीरो एक्स्ट्रा लिख लेंगे. डेसिमल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को सेम करेंगे. 9 minus 0 will be 9. 3 minus 6 is not possible. 0.379 will be the answer. Okay. Next, number B 0.9 minus 0.48. पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाना चाहिए. ओके. 0.9 में जो पॉइंट है उसके नीचे ही दूसरे नंबर का पॉइंट भी आ जाना चाहिए. तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इक्वल करने के लिए एक जीरो लिखना पड़ेगा. ओके. 0 minus 8 is not possible. Take 1 borrow from 9 and 8 minus 4 will be 4. So 0.42 will be your answer. Now the remaining sums you will do on your own and find out the solutions to complete exercise number 2D. That one is the last of our second chapter. Okay, ये last exercise है हमारे second chapter की. I hope you all have understood the concept of decimal and the addition and subtraction of decimals very well, and you will try to find out the solutions that we have not attended in the class. So here we are ending up our chapter number 2, and with this chapter we are ending up our lecture for today. Thank you everyone for watching my video.